Now, let's start today lecture with servlet interfaces. What is servlet interface? Servlet interface provides common behavior to all the servlets. It's most important point. It provides a common behavior to all the interfaces available, and that because we know that servlets works under the container. That container also need to be constructed through programming only. That programming domain is taken care by these common behavior programming substance. Now let's see. Let's see what servlet interfaces need to be created for creating any servlet, either directly or directly. We understand that we need three lifecycle methods that are used to initialize the servlets to service the request. First is to initialize the servlet. Second is to service the request. Third is to destroy the servlet. And last is there two non-life cycle servlet methods are also there. Let's see what are the methods of the servlets. There are 5 methods we of major. There are 5 methods in the which is major in servlet interface in the use as a servlet interface. The init, initialize method, init, service, and destroy are the lifecycle methods. 3 lifecycle methods, and 2 more methods are which are known as the non-cycle methods. These are invoked by the web container. Now let's initialize the thing. Public void init. This is init, which can be used in the service configuration. It is its work is to initialize the servlets, and it is the lifecycle method of the servlet, and invoked by the web container only once. Okay, it is invoked by the web container only once. Now, let's initialize public void service, servlet request, servlet response. Provide response for the incoming request. It is invoked at each request by the web container. Okay, it is invoked by the each request. Public response for the incoming request. It is invoked at the each request by the web container. ये कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अपने आप को इनिशियलाइज करेगा ही करेगा रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए. फिर आता है जी सर्वलेट वॉइड डिस्ट्रॉय. इट इज इन्वोक्ड only once and indicates the servlet is being destroyed. Okay, ये अपने आप को एक बार जरूर इनिशियलाइज करता है और ये मान और ये और तब तक इनिशियलाइज करता है. उसके बाद सर्वलेट उस वेब एप्लीकेशन एरिया से अपने आप को खत्म कर लेता है. और ये तो दो हो गया ये 3 जो है लाइफ साइकिल मेथड्स हैं. और ये जो 2 मेथड्स की हम बात कर रहे थे नॉन साइक्लिक मेथड्स, वो हैं यहाँ servlet config get servlet config return the object of the servlet config. मैंने कहा था आपको कंटेनर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. तो वो जो 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स है वो ये हैं जो ऑब्जेक्ट आपको कंटेनर बनाने में मदद कर रहे हैं. दूसरा है पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो रिटर्न्स information about servlet such as writer, copyright, version, etc. तो सर्वलेट को अभी ना आप सर्वलेट को एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे आप लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, मैंने एक सर्वलेट के लिए एग्जांपल लिया first.java. ठीक है, एक सर्वलेट का एग्जांपल ले रहा हूँ first.java के नाम से. सबसे पहले मैंने उठाया java.input output string start.
दूसरा मैंने उठाया इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट और स्टार। ओके, तीसरा हमने उठाया पब्लिक क्लास फर्स्ट इंप्लीमेंट सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग इज इक्वल टू नल। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, इनपुट आउटपुट को पैकेज को इंस्टॉल किया, फिर सर्वलेट पैकेज को इंस्टॉल किया, फिर हमने सर एक क्लास बनाई फर्स्ट, उसमें इंप्लीमेंट किया सर्वलेट क्लास को, और सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन को अभी नल कर दिया। नॉन लाइफ साइकिल क्लासेस को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तरीके से। देखिए ये जो है नॉन लाइफ साइकिल क्लासेस, ये कंटेनर को इनिशियलाइज कर रहा है एक्चुअली। फिर यहाँ पे पब्लिक वॉइड लिया, इनिशियलाइज किया सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन को। कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि ये जो है इस कॉन्फ़िग को बिलोंग करता है जिसको हम नल बनाया। ठीक है, कॉन्फ़िग में इस इंफॉर्मेशन को पास की और यहाँ से नल वेरिएबल लेके आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया। अब जी सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया तो क्या होगा, जहाँ ये दो जो मेथड है जो नॉन साइक्लिक मेथड्स है, उन्होंने सर्विस को इनिशियलाइज करने में काम आ गया। ये कॉन्फ़िग जो है और ये जो कॉन्फ़िग और सर्वलेट की इन्फो है, ये आपको सर्वलेट के कंटेनर को इनिशियलाइज करने का काम आए। अब जब सर्वलेट अपने आप को इनिशियलाइज कर चुका है तो हम सर्वलेट अपने आप को क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के लिए एक्टिवेट कर लेगा। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल मतलब पब्लिक वर्ड सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट का क्या है REQ, सर्वलेट रिस्पांस का क्या है RES। ठीक है, थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, फिर सर्वलेट के एक्सेप्शन देखते। ठीक, अब देखिए सर्वलेट एक्सेप्शन में क्या है कि हमने एक जी लिया ये रिस्पॉन्ड, ये देखिए सर्वलेट रिक्वेस्ट को हमने दिखाया है REQ से, रिस्पॉन्ड को हमने दिखाया है RES से। ठीक है, सर्वलेट रिस्पॉन्ड, सर्वलेट के रिस्पॉन्ड के डेफिनेशन में हमने कंटेंट का टाइप सेट किया, जो हम आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे कि जब तक हमको कंटेंट का टाइप नहीं समझ में आएगा तब तक प्लान ऑफ एक्शन सर्वलेट डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसके साथ कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी जो कंटेंट टाइप है टेक्स्ट माई HTML, तो उन्होंने कहा कि जो राइटर है ये नॉन साइक्लिक मेथड है, रिस्पॉन्ड में राइटर के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और प्रिंट में आउटपुट में क्या मिलेगा, एक HTML बॉडी के साथ, और आउटपुट में क्या मिलेगा, एक HTML मिलेगा बॉडी के साथ, और उस बॉडी में क्या लिखा रहेगा, हेलो सिंपल सर्वलेट। ठीक है, और फाइनली वो सर्वलेट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर देगा और फिर सर्वलेट की हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फाइनली ठीक है, फाइनली ये सर्वलेट रन कर जाएगा जब हम वेब सर्वर इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। तो ये एक सर्वलेट का सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हमने सर्वलेट के पांचों मेथड्स को यूज किया है, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन भी यूज किया, इंफॉर्मेशन भी लिया, और लाइफ साइकिल को इनिशियलाइज किया सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल से, फिर उसको डिस्ट्रॉय भी किया। ठीक है, अब बात करते हैं जी सर्वलेट के जेनरिक सर्वलेट क्लास से। मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया था, एक जेनरिक सर्वलेट क्लास है और एक HTTP सर्वलेट क्लास है। तो जेनरिक सर्वलेट क्लास जो है वो हमें मदद करती है, हमें 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 कोई भी सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कहीं भी किसी भी डोमेन में सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करने पे मदद करती है। लेकिन HTTP सर्वलेट क्लास जो होती है वो HTTP प्रोटोकॉल की जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको फॉलो करने में हमें मदद करती है। चलिए अब देखिए जेनरिक सर्वलेट क्लास इंप्लीमेंट सर्वलेट। सबसे पहले सर्वलेट को इंप्लीमेंट करते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन है सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस। कॉन्फ़िग को करना ही पड़ेगा क्योंकि कंटेनर जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक सर्वलेट चलेगा। ठीक, फिर आता है जी सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस है क्या। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस क्या है, प्रोवाइड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ दोस इंटरफेसेस एक्सेप्ट द सर्विस। आगे ये generic servlet class can handle any type of request, so it is protocol independent. तो जो generic servlet class है ये protocol independent होती है। You may create a generic servlet by inheriting the generic servlet class and providing the implementation of the service methods. Okay, हम generic servlet class को करते हैं और implementation methods को inherit करते हैं
सर्वलेट क्लास की इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस मेथड। तो ये कैसे चलता है? देखिए, हमको पता है कि कोई भी सर्वलेट को प्रॉपरली इनिशियलाइज करने के लिए एक तरीके से 5 स्टेप मॉडल हमारे दिमाग में, इनिशियलाइज, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड, डिस्ट्रॉय, और दो हमारे पास ऐसे हैं जो साइक्लिक मेथड्स नहीं है, वो कॉन्फ़िग और सर्वलेट को कॉन्फ़िगरेशन करने में, सर्वलेट की इंफॉर्मेशन देने में काम आता है। तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो जेनेरिक सर्वलेट क्लास में यूज होते हैं? वो ये हैं। Public void initialize is used to initialize the servlet, है ना? ये होता है पब्लिक void initialize। ये क्या है? इनिशियलाइज करने का काम होता है। फिर आता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर आता है पब्लिक void डिस्ट्रॉय, फिर पब्लिक सर्वलेट config get सर्वलेट config, फिर आता है पब्लिक। अब देखिए इसमें क्या है ना, एक्सटेंशंस आ गए। जेनेरिक सर्वलेट में जो सर्वलेट मेन क्लास की डेफिनेशन है उसमें हमने और एक्सटेंशन कर दिए कि आप इनिशियलाइज कर देते हो जी, सर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल भी है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हो, इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। आपने इनिशियलाइजेशन के लिए एक अलग से सर्वलेट प्रोग्राम है कि एक अलग से कंटेंट ही डिफाइन कर दिया है, जो इंटरफेस डिफाइन कर दिया है। फिर आप सर्वलेट कंटेस्ट को डिफाइन करने के लिए ये एक मेथड डिक्लेयर करते हो। इनिशियलाइज के पैरामीटर को जानने के लिए एक मेथड डिफाइन कर दिया। अब वेब एक्सएमएल फाइल जो जो बनेगी उसके एनुमरेशंस के लिए एक मेथड डिफाइन कर दिया, इंटरफेस मेथड डिफाइन कर दिया एक्चुअली। फिर यहाँ पे आप सर्वलेट का ऑब्जेक्ट जो जो क्रिएट हो रहा है उसको डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग के मैसेजेस को डिफाइन कर दिया। फिर सर्वलेट यहाँ पे देखिए कि थ्रोवेबिलिटी में, थ्रोवेबल का मतलब क्या है कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। तो अब एक तो हमने सिंपल सर्वलेट का प्रोग्राम देखा, अभी हम देखते हैं कि जेनेरिक सर्वलेट मेथड्स को कैसे इनिशियलाइज करना। कुछ नहीं है, बस सेम है। बस उसमें क्या है कि जेनेरिक सर्वलेट की वजह से उसमें उसकी जो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। लाइक फर्स्ट डॉट जावा, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ, ठीक है। फिर इंपोर्ट करते हैं जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड जेनेरिक सर्वलेट। तो हमने इनपुट आउटपुट लिया, फिर सर्वलेट को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद सर्वलेट का फर्स्ट क्लास लिया, फर्स्ट नेम का, ठीक है। उस फर्स्ट क्लास फर्स्ट में एक्सटेंशंस देख रहे हैं जेनेरिक सर्वलेट का, ठीक है। अब देखिए पब्लिक वॉइड सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स जो है वो हमने यहाँ पे चेकआउट किया। पब्लिक हमने इनिशियलाइज किया फर्स्ट एक आपका एक सर्वलेट को नेम दिया फर्स्ट, ठीक है। फिर जी हमने क्या किया, फिर हमने जी क्या किया कि सर वॉइस में फिर हमने एक्सेप्शंस भी इसमें डिफाइन किए कि कोई लिटिल बिट प्रॉब्लम हो तो प्रोग्राम अपने आप को हैंडल कर ले। फिर हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप को डिफाइन किया सेम। उसी रिस्पॉन्ड में हमने राइटर लिया, जो भी रिक्वेस्ट आई होगी उसको पुश करने के लिए एचटीएमएल फॉर्मेट में, है ना। जो भी हमारा जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे एचटीएमएल दिए हैं, तो अगर हम कोई भी दूसरे एप्लीकेशन मॉड्यूल होता चाहे जैसे विंडो
वर्ड है तो वहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे। तो अभी तो हम टेक्स्ट बाय एचटीएमएल ले रहे हैं, तो एचटीएमएल बॉडी में वो चीज़ हमको रिस्पॉन्ड करके मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास जेनरिक सर्वलेट का एग्जांपल है। अभी देखते हैं कि जी एचटीटीपी सर्वलेट में क्या होता है। एक हो गया इंटरफेस सर्वलेट, एक हो गया जेनरिक सर्वलेट, अब हो गया एचटीटीपी सर्वलेट। तो सबसे पहली बात क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट जो है ये हमेशा किसी एक पार्टिकुलर मेथड पे ही काम करेगा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं एचटीटीपी सर्वलेट को, सॉरी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे काम करता है, वो प्रोटोकॉल है आपका एचटीटीपी। ठीक है, और ये एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट क्लासेस को और इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। और ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस आपने जावा बी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सीरियलाइजेबल प्रॉपर्टी की यहाँ भी यूज होती है। ठीक है, अब जब एचटीटीपी है तो रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल में गेट पोस्ट मेथड तो आ ही जाएगा ना। तो जितने भी हेडर फाइल की इंफॉर्मेशन है वो एचटीटीपी मेथड्स में मेथड में यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो जेनरिक सर्वलेट है। जेनरिक सर्वलेट का मतलब जनरल आप कोई सर्वलेट बनाते हैं, सर्वर की कोई भी इंफॉर्मेशन को एनहांस करते हैं तो आप उसकी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जब आप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पे काम करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को आप एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से ही एनहांस करते हैं। ठीक, पब्लिक वर्ड सर्विस, सर्विस रिक्वेस्ट servlet response dispatches the request to the protected service method by converting the request and response object into the HTTP type. Very important. ठीक है, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दूसरा मेथड जो होती है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सर्विस है, वो डिपेंड करती है कि हमारी इनकमिंग एचटीटीपी टाइप रिक्वेस्ट है कैसे। ठीक, आगे फिर हम इसमें जो हैंडलिंग है वो हम डू गेट और डू पोस्ट मेथड से करते हैं। और गेट और पोस्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ाई है कि कैसे ये इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक, फिर हमारे पास आता है जी हेड ऑपरेशन। ये हमको आपके नेटवर्किंग के, जब हमने नेटवर्किंग में जब मैसेज पासिंग पढ़ी थी कि एक एंड से दूसरे एंड पे मैसेज पासिंग कैसे होती है, तो उसमें हेडर का कितना बड़ा रोल प्ले है, उसी चीज में हम मैनेज करने के लिए यहाँ पे इंटरफेस बनाया गया है। ठीक है, क्या दो ऑप्शंस। फिर जी एक चीज आती है डू पुट। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट में काम आता है, तो ये है वेब कंटेनर में काम आएगा। फिर फाइनली आता है रिस्पॉन्स, फिर हम ट्रेस रिक्वेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट को ट्रेस करते हैं जिससे वेब कंटेनर अपने आप को इनिशियलाइज करता है। फिर हम डिलीट करने का भी एक अथॉरिटी देते हैं। और फिर एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट में हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं कि कब कब की है। ठीक है, तो ये बस इसमें क्या है कि हम एचटीटीपी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे जो सर्वलेट बनाते हैं उसको एचटीटीपी सर्वलेट क्लास पे यूज करते हैं। अब देखते हैं जी किसी सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट जैसे पिछली बार हमने पढ़ा कि 5 स्टेप्स में डिफाइंड है। सबसे पहले जी सर्वलेट क्लास लोड होगी, फिर सर्वलेट का एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। कोई भी जावा के प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम क्लास मॉडल पे काम करते हैं, क्लास अपलोड होती है, फिर इंस्टेंस क्रिएट होता है, फाइनली मेथड इनिशियलाइज होता है, फिर सर्विस मेथड इन्वोक होता है, फिर डेस्ट्रॉय मेथड इन्वोक हो जाता है। ठीक है, तो सर्वलेट क्लास लोड हुई, सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इनिशियलाइज मैसेज इन्वोक हुआ, सर्विस मेथड अपने आप इन्वोक करता है, फिर डेस्ट्रॉय मेथड आ जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं। अब देखिए, ये कंटेनर ने सबसे पहले लोड किया सर्वलेट को, क्रिएट किया इंस्टेंस को, फिर कॉल किया इनिशियलाइज को। इनिशियलाइज कॉल करने के बाद रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल क्रिएट होता है, तो सर्विस मेथड यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। फाइनली जब ये पूरा काम हो जाता है, सर्वलेट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। नाउ सी, as displayed in the above diagram, there are 3 states of a servlet: new, ready and end. सर्वलेट के कितने इंस्टेंस हैं? 3 इंस्टेंस हैं, न्यू, रेडी और एंड। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो न्यू क्या होता है? न्यू स्टेट है। इफ सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, तो हम कैसे काम करते हैं जी? न्यू स्टेट आफ्टर इन्वोकिंग वो क्या होता है? इनिशियलाइज होता है। सर्वलेट कम्स इन द रेडी स्टेट. In the ready state, servlet performs all the tasks. When the web container invokes the store methods, it shifts to the end state. ठीक है, अब देखिए फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले क्लास को लोड करना, सर्वलेट क्लास को। तो लोडर जो है, क्लास लोडर इज रिस्पांसिबल फॉर द लोडिंग द क्लास, सर्वलेट क्लास। ठीक है, सबसे पहले सर्वलेट क्लास को वेब कंटेनर में लोड करता है। सर्वलेट क्लास इज लोडेड फर्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय द वेब कंटेनर। फिर वहां से वेब कंटेनर जो है एक इंस्टेंस क्रिएट करता है सर्वलेट का।
सर्वलेट क्लास लोड हुआ, वहां से एक सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट हुआ और उसकी सर्वलेट की लाइफ साइकिल इनिशियलाइज हो जाएगी। जहां इनिशियलाइज हुई इनिट मेथड अपने आप को इन्वोक कर लेगा। इनिट मेथड इन्वोक करने के बाद ये इनिट मेथड अपने आप को इन्वोक करेगा, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर फाइनली वो जॉब को पर्पसफुली सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर सर्विस मेथड इन्वोक होगा, ठीक है। तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं, सर्विस, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर फॉर सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली हम जो है उस मेथड को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सर्वलेट की लाइफ साइकिल। अब आगे हाउ टू क्रिएट अ सर्वलेट। तो हमको पता चल चुका है सर्वलेट के बारे में। फाइनल हमको ये समझना है कि एक सर्वलेट बनता कैसे। तो there are given 6 steps to create a servlet example. Okay. सबसे पहले हम जो है 3 तरीके से सर्वलेट बना सकते हैं, नॉर्मल सर्वलेट इंटरफेस से, जेनेरिक सर्वलेट क्लास से, या एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से। मोस्टली हम एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को बनाते हैं बिकॉज जिसमें हमको डू गेट, डू पोस्ट और डू हेड मिल जाता है जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देता है। और बेसिकली जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे अपाचे टॉमकैट सर्वर का, वो एक वेब सर्वर। तो वेब सर्वर में सबसे अच्छा रहेगा कि हम ये इसमें ये भी इसमें यूज होता है। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर सीखने के काम आता है कि वेब सर्वर में रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं वेब एप्लीकेशन की, अपने वेब एप्लीकेशन की डायरेक्टरी बनाते हैं और उसमें फाइल्स को सब कुछ रखते हैं कि भाई कैसे होगा, क्योंकि कंटेनर जब तक रहेगा नहीं तब तक आप सर्वलेट को चला नहीं सकते। फिर हम सर्वलेट को क्रिएट करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफाइंड इंटरफेसेस। उसके बाद ये प्रोग्राम हम लिखते हैं कि भाई सर्वलेट का जो प्रोग्राम हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपने जी सर्वलेट आपने इंपोर्ट किया सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, फिर सर्वलेट में इंपोर्ट किया, फिर जावा डॉट आई, फिर हमने डेमो सर्वलेट लिया, एक्सटेंड किया एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को, फिर डू गेट किया, फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लिया, फिर एचटीटीपी रिस्पांस को, फिर थ्रो किया serializable को, फिर इनपुट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन को, फिर फाइनली रिस्पांस को कंटेंट टाइप में लिया और कंटेंट टाइप को सेट किया, फिर प्रिंट राइटर को लिया, फिर रिस्पांस की गेट राइटर को। फाइनली जो है हमने वही अपने सर्वलेट को HTML फॉर्मेट में यूजर को भेज के उसको क्लोज कर दिया। सर्वलेट को कंपाइल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके जार फाइल्स बनते हैं अलग अलग सर्वर पे। सर्वलेट एपीआई बनता है अपाचे टॉमकैट पे, वेबलॉजिक डॉट जार बनता है वेबलॉजिक पे, जावा डबल ई ग्लासफिश में बनता है, जावा डबल ई एंटरप्राइज एडिशन इसको कहते हैं एक्चुअली में, जार बनता है जेबॉस। अब उसको लोड करते हैं फाइल को 2 तरीके से। हम सेट एक क्लास पाथ सेट करते हैं, फिर फाइनली हम फाइल को उस फोल्डर तक ले जाते हैं, फिर और जो जितना भी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वो हम एक्सएमएल फाइल में वेब कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, जिसको टाइम पड़ने पर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन अपने आप उसको इन्वोक कर लेता है। और क्योंकि ये प्रोग्राम जब हम एचटीटीपी पे चलते हैं तो ऑब्वियस एचटीटीपी प्रोटोकॉल किसी के थ्रू जाएगा, तो हम यूआरएल का यूज करते ही करते हैं। तो जब यूआरएल का यूज करते हैं तो एसएक्स, डीओएम और पार्सर्स जो है अपने आप अपने को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देखिए जी वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो ये जो है सर्वलेट का नाम इन्होंने अपना नाम दिया है, सो डेमो सर्वलेट वेलकम किया गया। अब ये है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। फाइनली वेब एप्लीकेशन है, फिर सर्वलेट है, फिर सर्वलेट का नाम है, फिर सर्वलेट की क्लास है, फिर सर्वलेट की मैपिंग है, फिर उसके यूआरएल पैटर्न है, ठीक है। यूआरएल पैटर्न जरूरी होता है जब हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। वेब ऐप हमेशा होल एप्लीकेशन को मैनेज करता है। सर्वलेट जो है रिप्रेजेंट करता है सर्वलेट को, सर्वलेट नेम जो है रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सर्वलेट, सर्वलेट क्लास रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग इज यूज्ड फॉर द मैप ऑफ सर्वलेट, ठीक है। स्टार्ट अ सर्वर एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के तरीके होते हैं, ये उस तरीकों के बारे में डिफाइन कर किया जा रहा है। सबसे पहले हमको इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करना पड़ता है अपने प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल देखिए, आप सिंपल जाइए डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप ओपन कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज से एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए, फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल को सेट करिए। और सेट करने के बाद जहाँ पे आपने वेब आईएनएफ बनाया है, वेब की इंफॉर्मेशन को जावा का होम बनाया जेडीके फोल्डर वैल्यू, वहाँ पर उसको इनिशियलाइज कीजिए। इनिशियलाइज करने के बाद
उसको ओके कीजिए, तब आपका जॉब टॉमकैट रन करेगा। अब आप जो है टॉमकैट को स्टार्ट करेंगे ना, तो तो वो सबसे पहले आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा एक सर्वर साइड। तो अपाचे को कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको कनेक्टर अपाचे का जो कनेक्टर पोर्ट है वो 8080 है, और आप इस 8080 को अपने हिसाब से किसी 4 डिजिट नंबर में चेंज कर सकते हैं। फाइनली डिप्लॉय करते हैं सर्वलेट के प्रोजेक्ट को, और वेब डायरेक्टरी को फिर इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के बाद हम प्रोग्राम को जब लिखते हैं, जब रन कराते हैं, तो फाइनली वो प्रोग्राम जो है सर्वर साइड से हमको रिस्पॉन्ड करता है, और यूआरएल में हम रिस्पॉन्ड देखते हैं वेलकम टू सर्वर, वेलकम टू सर्वर। तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को आप देखिए, इस प्रोग्राम में जो हमको प्रिंट करना था, वेलकम टू सर्वलेट प्रिंट करना था, जो हमारे यूआरएल में प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमने अपाचे को इंस्टॉल किया। अपाचे को इंस्टॉल करने के बाद हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में अपाचे टॉमकैट को पाथ सेट किया, जावा का पाथ सेट करने के बाद अपाचे टॉमकैट को इनिशियलाइज किया, फिर इनिशियलाइज चेक किया, और चेक करने के बाद फाइनली हमने ये अपना सर्वलेट रन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाला ये है कि ये सर्वलेट काम कैसे करता है। जी सर्वलेट काम करता है, it is important to learn how servlet understand the servlet, ठीक है। तो वेब कंटेनर सबसे पहले क्या करता है, लोड करता है सर्वलेट को, सर्वर को इंस्टेंटिनेट करता है, सर्वलेट क्लास बनाता है, इनिशियलाइज मैसेज को इनिशियलाइज कर देता है। ये काम तो हमारे रिक्वेस्ट के आने से पहले ही हो जाता है कि सर्वलेट क्लास अपने आप को इनिशियलाइज कर लेता है और लोड हो जाता है, या ठीक है, और रिक्वेस्ट से, और जब या तब होता है जब रिक्वेस्ट आती है तब अपने आप को इनिशियलाइज करता है, ठीक। Web container calls the destroy method when it needs to improve the servlet, such as time of stopping server and deploying the. कैसे कंटेनर हैंडल करता है सर्वलेट के रिक्वेस्ट को, उसके उस टाइप में सबसे पहले वो मैप करता है रिक्वेस्ट को web.xml फाइल पे। मैंने आपसे कहा था कि हम पहले ही उस फाइल को बना लेते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल एक फाइल की लोकेशन देते हैं, और इन्वायरमेंटल वेरिएबल के थ्रू वहां से अपने आप को इनिशियलाइज करता है। फिर रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर सर्विस मेथड का थ्रेड क्रिएट करता है, फिर पब्लिक सर्विस को इनिशियलाइज करता है, फिर प्रोटेक्टेड सर्विस जो है डू गेट या डू पोस्ट, डू गेट भी हो सकता है, डू पोस्ट भी हो सकता है, वो जनरेट करता है, फिर वो क्लाइंट को पास करता है, ठीक। और जब वो काम खत्म हो जाता है तो वही कंटेनर जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को डिलीट करता है, जिससे प्रोसेसर पे कम से कम कुछ करना, ठीक है। फाइनली पब्लिक वॉइड्स सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिस्पॉन्ड थ्रो करता है एक्सेप्शंस को, और ये ट्राई कैच मॉडल पे काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरनली है कि कैसे काम करता है कि वो सर्विस के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड को, तो एक्सेप्शन शुरू होते हैं, उसको हम गेट मेथड के थ्रू ले लेते हैं, और हम साफ साफ मॉडिफिकेशंस के थ्रू रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देखते हैं। गेट मेथड में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को अगर ठीक है, मॉडिफिकेशंस के थ्रू भी हम चीजों को समझ जाते हैं। ये एक तरीका था अपाचे टॉमकैट के थ्रू सर्वलेट को रन करने का। अगला जो तरीका है इक्लिप्स में कैसे रन करें, ठीक है। इक्लिप्स में रन करने के लिए हम वॉर फाइल का बनाते हैं, वेब प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो, और वॉर फाइल में सर्वलेट हो सकता है, XML, JSP, इमेज, HTML, CSS, JSS फाइल्स होती है। तो वॉर फाइल होती क्या है एक्चुअली, वॉर फाइल होती है वेब आर्काइव फाइल, ठीक। ये जो है हमारा टाइम थोड़ा बचाती है, ठीक है। वॉर फाइल में क्या है कि भाई कंसोल पैनल में सीधे आप वॉर फाइल को लीजिए, और वॉर फाइल हम पहले से बना लेते हैं, सर्वलेट की सब इन्फॉर्मेशन उसमें रखते हैं, तो बार बार वो अपने आप को इनिशियलाइज नहीं करता है, और वो जब इनिशियलाइज नहीं करता है तो हमको इनिशियलाइज करना नहीं पड़ता है एक्चुअली, वो बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन उसमें कॉन्फ़िगर्ड रहती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो ये उसके तरीके हैं, और भी है कैसे इंडेक्सिंग करते हैं। तो राइट नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस सर्वलेट इज ऑल अबाउट, okay, how it works, and seeing your examinations and all, it is more than enough for your job. I think so we cover up handsome amount of in the servlet concepts with us. See, now we will go for some university examination papers to understand the topic better.
ओके